merit will define your career progression. You will get equal opportunities. There will be no discrimination, and you will have an opportunity to make a difference. मैंने पहले भी बोला है कि you will work in areas which will have the potential to make, which will have a potential to impact lives of millions. The HR's environment is very supportive. Bhavna and Udip will also talk about briefly. She will share her experience, and it's a rewarding career. Means like there are time-defined progressions, and but it's a rewarding career more or less if you are an honest worker. There is a certain threshold with some degree of certainty. I can say you will reach there, and you will be heading a department, big department, central office departments, and regional offices. Compensation may slightly I would mention. The CTC per month comes to around 1.5 lakhs at RBI. Beyond that, sir, we offer medical facilities which will be also covered here. Accommodation is all given. We reimburse various expenses like vehicle loan, purchase of journals, books, and medical benefits are there. And there are dispensaries all over our offices. Bhavna will also touch upon this medical benefit part, but I'll say कि ये जो medical benefit Reserve Bank of India देते हैं, no organization is going to match that. So she will also touch upon that. Then travel allowances are there, property. आप जो सोच सकते हो, you think about the privileges and perks and allowance, and I think that Reserve Bank of India will give you. So that is the charm of working with Reserve Bank of India. ऐसा नहीं है लोगों को लगता है कि it's a private public sector organization, तो culture public sector type से होगा. So I'll tell you, it's totally different. Highly professional organization, highly motivated individuals are working over there, and it's a great experience to sit among those people and work with them. The work culture for female, maybe I'll ask Bhavna. Bhavna, you cover this part, this maternity benefit, hardship leave, office pickup and flexi working hours. So Bhavna will share her thoughts on this. And lastly, this is my last slide mostly. We have 32 offices. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉम्बे में काम करेगा, घूम के काम कर सकते हैं. जब 32 offices. And most importantly, कभी remote location नहीं मिलेगा आप लोग को. You will be always working in capital cities or bigger cities, if not capital cities. And we have approximately 30 departments at RBI. So you will have at least in your career progression, 30-35 years, you will see maybe 7-8 bigger departments, and that will give you a very sense of pride and satisfaction to your career. आप लोग में से कितने लोग फाइनल ईयर में हो? सभी लोग? अच्छा, और आगे का क्या सोचा है? क्लीशे क्वेश्चन है, बट क्या सोचा है? जॉब, ओके. एंड कुछ लोगों का हायर एजुकेशन होगा, मास्टर्स करना होगा. कितने लोगों को मास्टर्स करना है या फर्दर स्टडीज करनी है? एंड व्हाट इफ अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप जॉब के साथ भी मास्टर्स कर सकते हो? ओके. सो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट कल्चर में जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके कल्चर को आप जानते हो. रेगुलर वर्क होता है, सॉर्ट ऑफ बोरिंग अगर हमारे एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बोला जाए तो आपको कैसा कल्चर पसंद है? कॉर्पोरेट कल्चर पसंद है या गवर्नमेंट कल्चर पसंद है? बट कॉर्पोरेट में वर्कलोड बहुत होता है. व्हाट इफ इन दोनों का क्वालिटीज आपको एक साथ दे दिया जाए? कॉर्पोरेट कल्चर हो, वर्कलोड जितना आप कर सकते हो आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हो, एक्सेसिव प्रेशर ना हो, तो फिर आप क्या चुनोगे? ऑब्वियसली ये ऑप्शन चुनोगे. एंड जॉब की क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? फर्स्टली अच्छी सैलरी होनी चाहिए. एंड सेकेंड थिंग, आज के टाइम पे सिक्योरिटी चाहिए. ये दोनों चीज आरबीआई आपको देती है, एंड ये दो प्राइमरी चीजें हैं. एंड रहा बात पढ़ाई की, आप लोग कितने लोग, सब लोग रांची के हो?
रांची झारखंड। कितने लोग झारखंड में पढ़ाई करना चाहते थे? ओके, सो आरबीआई के थ्रू आप जितने भी आपके प्लेसमेंट्स होंगे, मतलब जितने भी आपके ट्रांसफर्स होंगे, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी, सब अर्बन सेंटर्स में होगी। झारखंड में भी रांची में होती है। एंड बाकी जितने भी होंगे, जैसे कमर्शियल बैंक्स में आपको रूरल ब्रांचेस मिलते हैं, यहाँ आपको नहीं मिलते। यहाँ आपको मोस्टली क्या, बस अर्बन ही सेंटर्स मिलते हैं। तो एक मौका है रांची से बाहर जाकर जॉब करने का। ओके, एंड नेक्स्ट, कुछ लोग जो आगे पढ़ाई करना चाहते होंगे या अदर कॉलेजेस में जितने पढ़ाइयाँ होती हैं, मतलब एक सच एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करती है आरबीआई। जैसा सर ने बताया कि आईआईटी, आईआईएम, हर जगह से लोग आते हैं, तो आपको उनसे बहुत सी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। सो बेसिकली ये आपको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देता है जिसमें आप कंटिन्यूअसली आप कुछ ना कुछ लर्न करते रहते हो। आपका कुछ ना कुछ ग्रोथ हमेशा होते रहता है। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में एक सर्टेन पॉइंट पे जाकर आपका ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाता है। आरबीआई आपको ये चीज़ नहीं होने देती। जैसे उदित सर ने बताया, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी, बहुत से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपको उनके साथ काम करने का मौका मिलता है। ओके, एंड सिंस हमारा जेंडर स्पेसिफिक, मतलब नॉट जेंडर स्पेसिफिक, हम लोग जेंडर डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं। सो अगर जेंडर डाइवर्सिटी के प्रमोशन के लिए बात किया जाए तो फीमेल कैंडिडेट्स में क्या होता है कि आप देखते होंगे कि जो ज़्यादातर टॉप पोजीशंस हैं उसमें वुमेन कैंडिडेट्स नहीं जा पाती हैं। ऐसा क्यों? कोई गेस? वो बीच में छोड़ देते होंगे, है ना? सो इस पॉइंट पे आते हैं कि ठीक है, बेसिकली जॉब प्रोवाइड करती है आरबीआई, आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, सिक्योरिटी देती है, आपको ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी देती है, बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव योर ओन फैमिली, है ना? एंड उस वक्त आपके करियर क्लॉक का भी प्राइम टाइम रहता है, बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद, जॉब के बाद फिर मैरिज का टाइम आएगा, एंड देन उसके बाद जब फैमिली डिसीजंस आते हैं, सो फीमेल कैंडिडेट्स यूजुअली कंफ्यूज हो जाती हैं, बिकॉज नाउ वो एक एम्प्लॉय के साथ साथ एक मदर भी होती हैं। सो इसके कारण वो ज़्यादातर फीमेल कैंडिडेट्स अपना जॉब छोड़ देती हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको जॉब के बाद, बेबी के बाद वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। आरबीआई ये एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। कैसे? फर्स्टली आपको मैटरनिटी लीव मिलती है 6 मंथ्स की। सेकेंड, आपको 2 साल का स्पेशल हार्डशिप लीव मिलती है। थर्ड, लीव के बाद भी आपको बैंक क्रैश फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसमें आप बच्चे को बैंक में ही अपने ऑफिस में रखोगे, एंड देन फिर उसके बाद जब कुछ नैनीज होंगी जो आपके बेबी का ध्यान रखेंगी। टाइम टू टाइम आप अपने बेबी से जाके मिल सकते हो, लंच टाइम में उनके साथ लंच कर सकते हो, एंड देन छुट्टी के बाद आप आराम से उनके साथ घर जा सकते हो। तो फिर क्या एनवायरनमेंट, ये कल्चर आरबीआई के अलावा और कोई प्रोवाइड करती है? सो यही चीजें हैं। इसके अलावा भी मेल कैंडिडेट्स के लिए भी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी, जैसा अरविंद सर ने बताया कि हमारी मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। आपके पेरेंट्स रांची में होंगे एंड आप कहीं और पोस्टेड होंगे, जयपुर, राजस्थान, दिल्ली, अहमदाबाद, कहीं भी, एंड सडनली आपको पता चलता है कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो गई है हेल्थ में। तो आपको बस लोकल ऑफिस को, लाइक आपको पता रहेगा कि रांची में आरबीआई का एक आरओ है, आपको बस मेल करना है, एंड देन यहाँ बेस्ट हॉस्पिटल्स के साथ आरबीआई का एम्पैनलमेंट होता है। उन हॉस्पिटल्स में आपके पेरेंट्स या आपके डिपेंडेंट्स जो भी हैं वो एडमिट होंगे। आप जब तक आओगे तब तक सारे हॉस्पिटल का फैसिलिटीज़, एक्सपेंसेस, जितने भी खर्च हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का ध्यान आरबीआई रखती है। इनफैक्ट इस सेंस में आरबीआई आपके गार्जियन के रोल प्ले करती है। सो
एक्सपेंसेस का आपको टेंशन नहीं है, आप आराम से जॉब कर सकते हो। सो आई थिंक इससे बेटर एनवायरनमेंट मोस्टली नहीं दिखता होगा। एंड टॉकिंग अबाउट माय प्रोफाइल, जैसा लिखा है, ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज इन 2019, जॉइन बैंक ऑफ इंडिया इन 2020 एंड आरबीआई रांची इन 2021। इसके पहले मैंने सीपीसी डिपार्टमेंट में काम किया है। उसमें आप बीओ का जानते होंगे आप लोग, बैंकिंग ओम्बड्समैन, आरबीआई कहता है सतर्क बनिए, जागरूक बनिए। हाँ, तो ये सब कंप्लेंट्स का रिजॉल्व सीपीसी यूजुअली बीओ की तरह ही काम करती है। नाउ आई एम इन एचआरएमडी। सो एचआरएमडी में क्या है कि आरबीआई बस ऑफिस वर्क नहीं है कि आप टेबल जॉब किए हो, आप बस कंप्यूटर में लगे पड़े हो। डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स आते हैं। इंडिया में फेस्टिवल्स की कमी नहीं है, हर फेस्टिवल्स में कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो बीट स्केट, सिंगिंग, डांसिंग, सभी चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को प्रमोट भी किया जाता है। तो अगर आप में ये सब क्वालिटीज़ भी हैं तो आप इन सब को लेकर भी आरबीआई में आ सकते हो। सो आई थिंक एंड यस, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है। अगर बेसिकली ऑफिस टाइमिंग आपकी 9 to 5 या 10 to 6 होती है, और अगर आपका लेट हो जाता है तो बैंक आपको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। एंड एक पर्सन असाइन रहते हैं जो ये श्योर करते हैं कि आप सही टाइम पे पहुंच गए हो। एंड नेक्स्ट, फ्लेक्सी वर्किंग आवर्स। फ्लेक्सी वर्किंग आवर्स मीन्स ऑफिस का टाइमिंग 9 to 5 है, बट आप कुछ पर्सनल इश्यूज हैं तो आपके लिए फिर 10 to 6 भी आप जॉब वर्किंग आवर्स सेम रहेंगे। सो इस तरह की फैसिलिटीज, बहुत सी छोटी छोटी फैसिलिटीज हैं। आई थिंक इतना एनफ है बताने के लिए कि आरबीआई फीमेल्स के लिए क्यों इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। Any question? फुल्ली सेटिस्फाइड। अगर क्वेश्चन है तो पूछ लो, क्योंकि बार बार हाँ खड़े माइक दे दो। Good afternoon, ma'am. Ma'am, you said that generally we are posted outside, which is like the metropolitan cities. Then how come, sir, you are posted here at the regional office in Jharkhand? That might be a personal one. There are two things. I'll answer your question. First of all, I worked in Bombay for 10 years. Uh, and then on a request transfer, I have come to Ranchi. So what we wanted to basically highlight is that ki you will work in metropolitan cities and capital cities. जैसे कि रांची इज वन ऑफ द कैपिटल सिटीज ना, तो जो भी कैपिटल होगा वहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसके अलावा नॉन कैपिटल सिटीज में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो वहाँ भी पोस्टेड हो, बट दे आर urban centers. Then you will not go to some small town or village or something like that. We wanted to indicate that, but that's a very good question. Thank you for asking. And RBI is also considerate in that terms कि you can stay closer to your family. Suppose करिए कि you want to stay to your family, issues are there and just want to go. हो सकता है कि आपका घर रांची में है तो it's an advantage for you. Suppose करिए what happens is कि जैसे कि गुमला में हो, जमशेदपुर में, you cannot go there because RBI is not present over there. But you can come as close to your native place. So that also means like I made a special request. He kindly allow me, and they have permitted me to stay there for certain times. कभी कभी ऐसा भी होता है due to some medical reasons or due to family exigencies, they will say कि okay because of your temporary phenomena है, आपको problem है घर पे, you just go there, resolve your issues, and after a period of say 2 years, 1 year, 3 years, you just come back, they will post you. So I hope that answers your question. Now the second point which I wanted to, it's a disclaimer कि हमने जो दीप ने रिफ्लेक्ट किया और जो भावना ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि हाउ टू गो अबाउट प्रिपेयरिंग, देयर आर मल्टीपल बुक्स का देयर इज नो एंड, यू कैन चूज वट एवर suits for you. But since Deep has gone through the process and what has worked for him, he has informed you. Coaching institutions,
type to prepare the exam, you are free to choose. We don't subscribe, we don't endorse anything. आप free हो कुछ भी तरीके से, क्योंकि you are best judge about yourself. You know कि आपको what suits you and what not. क्योंकि हो सकता है कि some people may be very good at reading newspapers. आदत सी होगी उनको, so they will prefer reading newspapers. Some may not. So यानी what works for you, what not works for me, what worked for Udeep, what worked for me, what worked for Bhavna, and what works for you. Maybe slightly different. Maybe there are certain common points. तो जो हमारा objective था business standard, business lines, it worked for us. It may not work for you. It may work for you. तो आपको decide करना है कि what is your strategy, कि हमको किस तरह से strategy बनाना है. आप जैसे normally देखते हो ना, टॉपर्स के इंटरव्यू आप क्यों पढ़ते हो? टॉपर्स के इंटरव्यू क्यों पढ़ते हो? आप क्यों देखते हो, क्यों सुनते हो टॉपर्स के इंटरव्यू? जस्ट टू गेट सम क्लूज. हाँ, क्लूज कि उन्होंने क्या चीज़ ऐसा किया था जो हम कर सकते हैं एंड आई कैन इम्प्रूव अपॉन. तो जो इनका एक्सपीरियंस शेयरिंग है इज टोटली टू बी टेकन एज ए क्लूज, नॉट एज ए हार्ड लिस्ट. एंड you are free to choose and decide whatever strategy you have. And lastly, I hope there are no further questions. Okay, sir. So principal sir, thank you very much. I thank on behalf of Reserve Bank of India for giving us this opportunity to showcase what are the opportunities for women, especially for women, is at RBI. And thank you students for your time. I know time is precious. College खत्म हो गया है. And उसके बाद आपको घर जाना है. Thank you so much for your patience and asking your questions. I thank you for keeping this session interactive. Thank you very much. मैं गौतम मैम के लिए प्रिंसिपल सर से आग्रह करता हूँ कि आके बच्चों को अपना आशीर्वाद दें. और गुड आफ्टरनून टू ऑल. ये बड़ा अच्छा सेशन रहा, लगभग 1 घंटे का. जब आरबीआई के लोग आपके बीच आए आज के पहले, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के पहले आपने कभी ये नहीं सोचने का प्रयास किया होगा कि आरबीआई में होता क्या है. आरबीआई सुना है, आरबीआई का फंक्शन आपने पढ़ा है जरूर, बट देखा कभी नहीं. हम लोग पिछले दिनों रिमोट सेंसिंग की बात कर रहे थे जब हम लोगों ने बुलाया था ज्योग्राफी और साइंस वाले लोगों को, कि विदाउट टचिंग रिमोटली हम कैसे एक्सपीरियंस करें किसी चीज़ों को, तो उसको रिमोट सेंसिंग कहते हैं. उसी तरह से आज के पहले आप नॉर्मल बैंक में आप गए होंगे और देखा होगा कि कैसे कतार लगते हैं, कैसे लाइन में लगते हैं और कैसे उनका वर्किंग होता है. कभी कभी बहुत बोरिंग होता है, कभी कभी बहुत खराब लगता है, कभी कभी आपको इच्छा होती है कि शायद उस कुर्सी पर मैं भी होती या होता. बट आरबीआई के बारे में आपके घर में आकर कोई बताए, ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलता. मारवाड़ी महाविद्यालय में आईक्यूएसी और प्लेसमेंट सेल के संयुक्त तत्वावधान में ये प्रयास किया गया और आरबीआई से लोग हमारे बीच आए. आप देखिए वर्क कल्चर में क्या फर्क है कि आरबीआई से लोग आपके बीच आ रहे हैं अपनी बातों को बताने के लिए. वो चाहते हैं कि आप अच्छे लोगों को हायर करें. और इसलिए जनरली होता यह है कि प्यासे कुएं के पास जाता है, बट कुआं प्यासे के पास आ रहा है, इसलिए कि वो चाहते हैं कि अच्छा लॉट हमारे पास आए और आपको जानकारी हो. जानकारी के अभाव में बहुत सारी चीजें लोग नहीं कर पाते. जैसा कि सर ने अभी बताया कि अगर हमको पता होता है 21 साल की उम्र में कि आरबीआई क्या चीज है, तो शायद हम पहले से प्रिपेयर कर पाते. और ये चीजें कि आप प्रिपेयर कैसे करेंगे, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है. कई बार ऐसा होता है, कभी आपने सुना होगा अपने सीनियर से, कोई लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो आपसे कहेंगे कि मैंने 4 बार पीटी निकाला, एक बार भी मेंस नहीं निकाला. कहने का मतलब ये है कि आप तैयारी प्रिलिमिनरी के लिए नहीं करें. सर ने बताया स्टेज 2, स्टेज 3 तो बाद की बात है, बट स्टेज 1 के लिए ही लोग तैयारी करते हुए अटक जाते हैं. वो तो एक क्वालिफाइंग है,
उसके बाद आपको मेन आपका एग्जाम होना है वो स्टेज 2 पे होना। तो क्यों ना हम स्टेज 1 के साथ साथ स्टेज 2 को फोकस में रखें कि रियल टेस्ट आपका स्टेज 2 में होना। तो जब भी मेरा आग्रह है कि जब भी आप प्रिपेयर करें तो स्टेज 2 को ध्यान में रखते करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें स्टेज 2 के प्रिपेयर के साथ साथ स्टेज 1 में आ जाएंगी। कुछ चीजें अलग हैं वो आप कर लेंगे। अगर आपके पास में वो इनर चीज है, आपके पास में वो जज्बा है, आप चाहते हैं कि हम कर पाएं, तो हर व्यक्ति कर पाता है। और अगर आप में ये आपको लगता है कि हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें जहां पे प्रोफेशनलिज्म है, जहां पे आपको सीखने का मौका मिलेगा, जहां पे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जहां पे आपको सिक्योरिटी मिलेगी, वहां पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी जितना बताया गया आपको आरबीआई के बारे में, उससे बेहतर ऑर्गेनाइजेशन आपको कम मिलेगा। तो आप, मेरा पूर्ण आग्रह है, फिर से आग्रह है कि आप चूंकि कॉमर्स के लोग हैं और जैसा कि मैडम ने बताया, अगर फीमेल कैंडिडेट आरबीआई में आती हैं तो उनके पास एडिशनल बेनिफिट है। बहुत जगहों पे एडिशनल बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, छुट्टियां होती हैं, 6 महीने का हम भी देते हैं छुट्टी अपने फीमेल स्टाफ को, वो मैटरनिटी लीव। मेल को भी देते हैं 15 दिन की छुट्टी पैटर्निटी लीव के रूप में कि तुम भी जाओ अपना बच्चा पालो 15 दिन के लिए, वो अलग चीज है। बट 2 साल एक्स्ट्रा जो लीव मिलती है वो हम नहीं देते। जो उनको स्पेशल बेनिफिट मिलता है 2 साल, वो हम नहीं देते, तो वो एडिशनल है। या फिर बच्चों की देखभाल के लिए सुविधा। और ये एक बहुत बड़ी चीज कि रिमोट पोस्टिंग आपकी नहीं होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फैमिली लाइफ लीड करने के लिए, अच्छा क्वालिटी लाइफ लीड करने के लिए। अगर आपकी नौकरी एक एयरपोर्ट में होती है तो आप मान के चलिए गुमला में पोस्टिंग नहीं होगी आपकी, क्योंकि वहां एयरपोर्ट होगा नहीं, एयरपोर्ट है नहीं। तो आरबीआई का जो ऑफिसेज हैं, आरबीआई के जो ऑफिसेज हैं बड़े बड़े शहरों में ही हैं, कैपिटल के साथ साथ कुछ बड़े बड़े शहरों में। तो ये आपके पास एडिशनल बेनिफिट होगा। आपका हस्बैंड भले गांव में नौकरी करता रहेगा, आपका फैमिली के साथ से वहां रहिएगा, उसके साथ अच्छी पढ़ाई होगी उनके साथ में, वो आएगा आपके साथ, आपको भागना नहीं पड़ेगा बार बार आपके हस्बैंड के पास। तो ये आपके पास एडिशनल बेनिफिट होगा। बहुत सारे बेनिफिट हैं, ये तो छोटी छोटी बातें हुई आपको सपोर्ट करने के लिए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका मानसिक सेटिस्फैक्शन। कहीं भी काम करें, अगर हम आपको 4 लाख रुपया दे दे पर मंथ और आपको मानसिक संतुष्टि नहीं हो रही तो बेकार है। आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है तो बेकार है, जीवन नीरस हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो मॉनेटरी के साथ साथ, मॉनेटरी बेनिफिट के साथ साथ मानसिक शांति बहुत जरूरी है, सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। तो जितनी चीजें आरबीआई के ऑफिसर्स ने आपको बताई, उससे ये तो मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि फीमेल के लिए खासकर, मेल के लिए तो है, उनको तो चलाना है, उनको नौकरी करना है, फीमेल के लिए खासकर बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली, आपको ये जानकारी मिली कि कैसे आप तैयार करेंगे। तो मेरे तरफ से, मारवाड़ी कॉलेज की तरफ से आरबीआई के ऑफिसर्स को स्वागत करने के साथ साथ थैंक्स भी दूंगा कि हमारे बच्चों को उन्होंने जानकारी दी। और आप सबको बहुत बहुत भविष्य के लिए शुभकामनाएं कि आप तैयारी करें बढ़िया से और आगे की ओर बढ़े। इन्हीं बातों के साथ थैंक्स अ लॉट। बच्चे अभी बैठे रहेंगे क्योंकि हमारे बीच जो है गांधी फेलोशिप से अमृत